Hello and welcome, dear viewers. Hope you had a very productive Sunday. So let's begin solving this kind of unique problem from binomial theorem. Binomial theorem, in my opinion, is the one chapter that is most disliked by students, and the reason for it is pretty simple. This chapter is taught in a terrible way by many teachers. मतलब सिर्फ रट्टा मारने को बोले जाता है, दो तीन फॉर्मूले बता दिए जाते हैं कि एक्सपेंशन ये होता है, रिमाइंडर थ्योरम ऐसे निकाला जाता है। कोई पैटर्न्स पे डिस्कशन नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन नहीं होता है, कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हम स्मार्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बस लिखा दिए जाते हैं, with no emphasis on how varied and like variable and amazing the applications are. So ये एक प्रॉब्लम एक ट्राई करते हैं। आई आई गारंटी इससे आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। अगर ये नहीं पढ़ा है तो इट विल बी वेरी वर्थवाइल फॉर दो स्टूडेंट्स एज वेल, एंड अगर पढ़ा भी है तो I guess you might have not seen this pattern before. Okay, so let's begin. Okay, so again, pause the video if you like, and again try to hustle on this problem. Give it a proper fight of at least 10 to 15 minutes. All right. So let's discuss it now. I hope you have given it a proper attempt and try to think on your own how can we solve questions like this. So सबसे पहले what is given to us is a clear binomial summation. So let's look at the lines of attack of this problem. Okay, it is a binomial summation. All right. So generally चार या पांच patterns, sorry about that. Generally चार या पांच patterns are taught to us. This may be one of them, maybe not. All right, this is a binomial summation, so maybe we can use some properties of NCR. These are the thoughts that should occur to you within the first 10 to 15 seconds of seeing this question for the first time. All right. Or maybe this is becoming telescopic or something, although that is very unlikely, but still it's a summation, so that obviously can be a possibility, but it's very rare in this case. So this is not happening. All right, let me write the general term of this. The general term is 30 general term. So 30 is a constant here. This the top number is increasing by 1. All right, let's look at it from the right. So 30, then 31, then 32 up to 98. So the top number is increasing by 1, and here how can we say, well, it starts from 69 and goes up to 1, goes up to 1. So we are decreasing something. All right. So 69 minus r. All right, at the first it will be 69, and then it will be 68, then 67, then 66. Eventually it will go to 1. And this summation is from 0 to 68, right? At 68, this will become 98, and this will become 1. So the end term will be achieved. So this is my general term, 69 minus r 30 plus rcr, 30 plus rc 30. This I have to solve. Okay. Now this is a binomial coefficient and it is multiplied with some constant. So what formula that is जो हमको रटवा दिया जाता है, which is r into ncr, ये यूज कर लो, इससे आंसर आ जाएगा. I can write this as n into n minus 1 cr minus 1, and I can take out of the summation, and this mostly becomes 2 की power n minus 1 with some variation. But notice you cannot do this here, because in this particular form the bottom number is variable, here the top number is variable. All right, this is not this is not this is supposed to change with the summation because this is dependent on r, but this is not. We can even try to flip this problem. If I flip the binomial coefficient, if I flip it, it will become r.
So that is happening, but now this number has become variable. This is supposed to be a constant. Let me rewrite it. R into NCR. The N is supposed to be a constant here. Alright. And this is variable. So sadly, we cannot use this formula here. Maybe someone can. I did not think of it along the lines of solving this problem. I'm using some other pattern here. If you think it can be solved, please give it a try, and you can share your method in the in the comment section. All right, I am in no position to tell you कि हाँ यही method है इससे ही कर लेना, है ना? That happens in subjects like no shots fired, but chemistry to some extent कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. All right, मैथ्स में I cannot say मैं नहीं सोच पाया इसका मतलब ये नहीं तुम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग नहीं सोच सकते हो. Obviously you can think. All right, actually I did not even try, but करके देख सकते हो, मे बी आंसर आ जाए. ऑलराइट, आई एम इन नो अथॉरिटी टू टेल यू कि यही होने वाला है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई हम्बल ओपिनियन हियर. ओके, सो लेट्स लुक एट इट from other way. What another summation is taught to us? Another summation is pattern 1. I teach it as pattern 1. This is also known as hockey stick pattern. Anyways, the name does not matter. Alright, what matters is the concept. So in this summation, let's say I have a number 15C15 plus 16C15 plus 17C15 plus 18C15. I have to find this value. So in this binomial summation, it starts from 15C15, like these two numbers are the same. The bottom number remains constant throughout. It does not change from 15 to 15. And the top number, that is increasing by 1. Alright, three conditions are there. RCR से शुरुआत करेंगे. Alright, बॉटम नंबर सेम रहेगा एंड टॉप नंबर एक से बढ़ता रहेगा, R+1, R+2, R+3. तो इस समेशन को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. टेक केयर ऑफ दिस. तो इस समेशन को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ और उसकी वैल्यू क्या होगी? 19C16. आप इस नंबर को 1 से बढ़ा दो एंड इस नंबर को 1 से बढ़ा दो, तो इस पूरे समेशन का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 19C16. एंड वी कैन सी सम हिंट ऑफ दिस ट्रेंड हैपनिंग अबव. यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि बॉटम नंबर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी बॉटम नंबर कांस्टेंट है एंड टॉप नंबर एक से बढ़ रहा होता है, यहाँ भी टॉप नंबर एक से बढ़ रहा है, राइट? सो देयर इज सम semblance ऑफ अ पैटर्न हियर, बट एक कैच है, एक एक डायलेमा है, एंड द डायलेमा इज यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड. दिस इज नॉट सपोज टू हैपन इन द हॉकी स्टिक पैटर्न. यहाँ सबके कोफिशिएंट 1 1 1 है. So in some ways we are deviating from this pattern, in some ways we seem to be approaching this pattern also. सो हमको अलोंग दिस लाइन ही सोचना है. ओके, हमको क्विकली ये वाली जो अप्रोच है आर इंटू एन सी आर वाली, इसको अबैंडन कर देनी है. ऑल राइट, तो चार पांच पैटर्न उसमें से मैंने हॉकी स्टिक एक यूज किया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर सैडली ये यहाँ पे यूज जिस तरह से मैं बता रहा हूँ यूज नहीं हो पा रही है. ऑल राइट, तो मुझे कोई एक पैटर्न यूज करना है एंड लकीली मुझे हॉकी स्टिक पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है. ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ता है. So let me write this again, 98. Okay, again let me write this summation from the backwards, that will make more sense. So 69 into 30C30. After that, what will I get? Number is decreasing, so 68 into 31C30. Then 67 into 32C30. And finally I will get 1 into 98C30. Okay, so I will use hockey stick but repeatedly. Okay, repeated hockey stick. Very interesting. इसका बहुत ही satisfying आंसर होने वाला है. So please stick around. Repeated hockey stick को मैं repeatedly use करूंगा with a very simple concept. देखो, हम x plus x को तो 2x लिख देते हैं. ये तो हमारे सबकॉन्शियस में घुस ही गया है कि x plus x is 2x.
बट 2x को x प्लस एक्स लिखना, दिस इज वेयर द जीनियस कम्स इन। ऑलराइट, कि मुझे 2x गिवन है, उसको मैं x प्लस एक्स लिख के अपना आंसर सिंप्लीफाई करूँ, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन ही होता है, बट वन को, जहाँ पे वन गिवन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना, दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस, दिस कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, सो ऐसा ही कुछ यहाँ करने वाले हैं। 30 is multiplied by 69, so what can I say? I can say कि 30 69 times ऐसे लिखा हुआ है, it is getting added 69 times। ऑल राइट, ऐसे 69 टाइम्स लिखा हुआ है 30 ओके। नेक्स्ट 31 किससे मल्टीप्लाइड है, 68 से, सो ये 68 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 31 प्लस 31 प्लस प्लस 31 प्लस 31 प्लस 31 ऐसे 68 टाइम्स लिखा है, तो ये लास्ट वाला रह जाएगा सिर्फ एक बार ऊपर तक लिखा जाएगा। ओके, द लास्ट वन विल बी लेफ्ट आउट, एक पहले तक लिख लेंगे हम। समझ में आया? 31 68 टाइम्स है, ये 69 टाइम्स है, तो ये एक ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक अकेला रह जाएगा, बाकी सारे इससे, बाकी सारे एक बार ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सारे इससे मैच हो जाएंगे। दिस इज 69 टाइम्स रिटर्न, दिस इज 68 टाइम्स रिटर्न। थोड़ा यहाँ कलर अब चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आई हैव 67 टाइम्स 32 C 30। तो 32 C 30 ऐसे कितनी बार लिखा है, 67 टाइम्स, तो अगेन 32 C 30, अगेन 32 C 30, अगेन 32 C 30। अब ये भी एक बार कम आएगा, ये इससे एक बार कम लिखा रहेगा, एंड ऐसे ये सीरीज देख रहे हो चलता रहेगा। इवेंचुअली क्या रहेगा, एक खाली यहाँ पे 98 C 30 बचेगा बस, तो यहाँ पे 97 C 30 होगा, और ये यहाँ पे आएगा दो बार बस, क्योंकि ये एक बार है तो ये एक बार है, तो ये दो बार है, एंड ये 69 टाइम्स है, ये 68 टाइम्स है, एंड ये 67 टाइम्स है। ऑल राइट, सो ऐसे मैंने जो समेशन है उसको बहुत सारे मल्टीपल समेशंस में तोड़ दिया, इस समेशन में, इस समेशन में, इस समेशन में, इस समेशन में, सारे समेशन में, और ये सारे हॉकी स्टिक है, ये सारे सेपरेटली हॉकी स्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आई होप यू कैन सी दिस। सो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हॉकी स्टिक पैटर्न्स। ऑल राइट, एंड अब सारों को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो द आंसर ऑफ द फर्स्ट समेशन विल बी 99 C 31। हम डायरेक्टली, again this series starts from RCR, the top number increasing by 1 every time and the bottom number is remaining constant. So just look at the last number, the last term, and increase both of the numbers by 1, the subscript and the superscript. Subscript increases by 1, superscript increases by 1, it becomes 99 C 31. This will become 98 C 31, right? And here the series will end in 96 C 30. So this will be 97 C 31. कैन यू सी दिस हियर? क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये खुद एक हॉकी स्टिक बन रहा है, और ये भी सारे ऐड होंगे, ये भी सारे ऐड होंगे, और ये खुद एक हॉकी स्टिक बना रहा है। ऑलराइट, और ये यहाँ पे इवेंचुअली 30 C 30 बच जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ये क्या बन जाएगा, 32 C 31। ऑलराइट, बिकॉज ये दो टर्म्स का समेशन विल बी 32 C 31। So every summation is in and of itself forming a hockey stick, and their eventual sum that will also form a hockey stick, और उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, सो सारे सम्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट मी राइट दिस फ्रॉम द लोएस्ट वन, फ्रॉम द लेफ्ट। 30 C 30 प्लस
32C31 प्लस 33C31, ऐसे कहाँ तक जा रहा है ये? ऐसे ये जा रहा है अप टू 99C31. All right. So this looks like a hockey stick. टॉप नंबर एक से बढ़ रहा है ना? बॉटम नंबर सेम है, और एक कैच है यहाँ पे. द सीरीज इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम RCR. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 31C31. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30C30. तो यार क्या डज दिस मीन कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं? क्या आंसर यहाँ से नहीं आएगा? क्या हम कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा? एक्चुअली नॉट. वी आर जस्ट स्टक, and we can remove that barrier. How? What is the value of 30C30? 1 only. And 1 I can write as 31C31 ना? क्या गड़बड़ है इसमें? This is a completely legal method. 30C30 को I can write 31C31 only. और यहाँ 32C31, 33C31, ऐसे 99C31 तक चलता रहेगा. एंड इवेंचुअली ये सारे टर्म्स खुद एक हॉकी स्टिक बना रहे हैं. एंड इस समेशन का वैल्यू क्या होगा? फाइनली 100C32. दोनों को एक से बढ़ा दिया क्योंकि ये खुद एक हॉकी स्टिक है. इवेंचुअली द आंसर कम्स आउट टू बी 100C32. एंड अब तो ये मेन क्रक्स था क्वेश्चन का. बाकी चीज़ें ये सब तो आसान है, हैंडल आउट हो जाएंगी. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ क्यू. तो 100C30 ये पूरा सम किसके बराबर दिया हुआ है? 100CQ के बराबर दिया हुआ है. The sum of this entire thing is 100CQ. So the value of this is 100CQ. So what can I say? इसके दो आंसर आते हैं ना. आई होप यू रिकॉल, बिकॉज आई कैन राइट एज, आफ्टर फ्लिपिंग आई कैन राइट दिस एज 68 as well. So q can take two values. Q can become 32 and q can become 68. And sum of all values of q is 32 plus 68, which is 100 only. So the answer is 100. This is our final answer. All right. So I hope you had a great time watching this video. कुछ नया सीखने को मिला होगा. And this is what the channel is all about. है ना? हमको पता है कि आप कितने बिजी हैं. यूट्यूब एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग जगह है, एंड इतने सारे चैनल्स है, इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. तो वी वुड लाइक टू ऑफर समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से सप्लीमेंट करे. है ना? कुछ ऐसे क्विक क्विक कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में सोचना मे बी डिफिकल्ट पड़े, एंड उनका पेपर में आने का, जो जेई पेपर है उसमें आने के चांसेस according to our estimates, since like it's literally our job to analyze the exam, तो हमको लगता है कि हाँ ऐसे ट्रेंड्स जो हैं ये फॉलो हो रहे हैं. तो उनको पैलेटेबल फॉर्म में यहाँ लेके आना. 20-20 15-15 20-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस जो आप ऑलरेडी 1.5x में या 2x में बिल्कुल देखिए ना. और तो अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो, है ना. 10-15 मिनट में फटाफट एक नई चीज़ सीखने को मिल जाए. तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड, एंड अपने यूट्यूब नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए. बट मेक श्योर कि वेन एवर यू कम टू द ऐप इटसेल्फ, व्हेन यू फिजिकली ओपन द ऐप, तो वहाँ पे आपको इस चैनल के अपडेट्स मिलते रहे, है ना. नोटिफिकेशंस आपको ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन में या अपने लैपटॉप में. बट जस्ट रिमेंबर टू कम बैक टू द यूट्यूब वेबसाइट टाइम टू टाइम, और वहाँ पे आप इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपके होम पेज पे ये वीडियोस फ्रेश रेगुलरली आती रहें. ऑल राइट. सो फॉलो द चैनल फॉर एवरीडे इम्प्रूवमेंट, एंड लिसन यार, हैव अ ग्रेट वन. एंड बढ़िया तैयारी करते रहो, खुश रहो, है ना. बाकी सब लाइफ में सब अच्छा ही होगा हमारे साथ. डेस्टिनी अवेट्स इफ वी कीप वर्किंग हार्ड. तो हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है. एंड या हैव अ गुड वन. सो सी यू, टेक केयर, बाय.